Hey, hi friends, welcome to PhD, that is Pratik Sir Tutorials. Now, in this last video of the chapter, the triangles and its property, we are going to learn the most important theorem, that is Pythagoras. In this class, 7th class, बस आपको ये theorem क्या है ये समझना है. In upcoming higher classes, you will be learning the proof of it. Getting my point? So in 7 just try to understand ये पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल का अप्लाई होता है और वो किस तरीके से अप्लाई होता है. अंडरस्टूड? दैट इज द ओनली पार्ट यू हैव टू लर्न इन दिस क्लास. नाउ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द पाइथागोरस थ्योरम. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पाइथागोरस थ्योरम जो भी होता है वो बस एक ही टाइप के ट्रायंगल को अप्लाई होता है एंड दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. जो भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, एनी वन एंगल, ठीक है, आउट ऑफ दैट ट्रायंगल एनी वन एंगल is of 90 degree, then that triangle will be called as right angle triangle, and for that triangle only the Pythagoras theorem will be applied. Understood? Now how the Pythagoras theorem is going to apply? Let's see. Now always remember that whenever you see any right angle triangle, means this symbol or somewhere if any angle is equal to 90 degree like this is mentioned, then the side which is opposite to 90 degree, whichever side, whatever the name of the triangle it will be, कोई भी triangle में दो, कुछ भी नाम में दो, 90 डिग्री के opposite side जो रहेगी वो हमेशा hypotenuse side होगी. कौन सी side? Hypotenuse side. Okay? नेम थोड़ा सा काफी hypo है, कंफ्यूज मत होना. इट्स सिंपल, द hypotenuse side. और ये हमेशा याद रखना, हाइपोटेनस साइड हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी. अगर हाइपोटेनस का डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है तो ये जो बचे हुए दो साइड का इनमें से किसी भी एक साइड का डायमेंशन 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा. तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस साइड ही हमेशा ग्रेटर रहेगी. अंडरस्टूड? और ये जो बचे हुए दो साइड है दैट इज इन दिस ट्रायंगल AC will be called as hypotenuse. AB and BC will be considered as the leg. So I can consider this leg 1 and leg 2. leg मतलब पैर. ये हाइपोटेनस के ये दो पैर हैं, राइट? ये हमारे दो वर्ड एंड पॉइंट हो गए हाइपोटेनस के. ये A और ये C, यहां से और यहां से स्टार्ट हो रहा है leg 1 and leg 2. Or else you can also call it as adjacent side or else base side. Okay, this name will be learning in the upcoming classes, but right now just remember leg 1 and leg 2. in short जो भी बचे हुए दो साइड्स है उनको हम leg 1 leg 2, कोई कंपल्सन नहीं कि यही leg 1 रहेगा, ये भी leg 1 हो सकता है और ये भी leg 2 हो सकता है. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप रैंडमली किसी को भी leg 1 या leg 2 कंसीडर करो. now see how this what this theorem means. This theorem says that in a right angle triangle the hypotenuse square or else hypotenuse side square is equals to sum of the square of legs. Okay, sum of the square of the legs. मतलब for example if I consider this hypotenuse side equals to A and the remaining two side equals to one as B and one as C, I can say that hypotenuse means A, that is A square equals to the remaining two side square sum means B square plus C square, and that's the Pythagoras theorem. Understood? In short, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस साइड को A कंसीडर करो स्मॉल है और जो बचे हुए दो साइड है वो किसी को भी B और किसी को भी C कंसीडर करो. B और C की पोजीशन हमारी चेंज हो सकती है बट A की हमारी फिक्स वो हाइपोटेनस होना चाहिए. एंड थ्योरम क्या कहेगा? A square will be equals to B square plus C square. मतलब अगर हम इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम करते हैं तो वो हमेशा हाइपोटेनस के साइड के स्क्वायर के बराबर रहेगा. अंडरस्टूड? दैट्स द पाइथागोरस थ्योरम. और एक स्टेटमेंट दिया आपके बुक में दैट if the Pythagoras theorem is applied or proved anywhere then the triangle must be the right angle triangle only. Okay, अगर ये कहीं पे अप्लाई हो जाता है मतलब LHS और RHS का आंसर सेम आता है
तो वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, इसके अलावा ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। और हाइपोटेनस साइड हमेशा तो लॉन्गेस्ट साइड है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे इन द लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 6.5। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6. Okay, now let's see the exercise 6.5. These three questions are there. Then we'll solve the next upcoming questions. Now see, what is given in this question? First question: PQR is a triangle right angle at P. If PQ is equal to 10 centimeter and PR equals to 24 centimeter, find QR. जैसे कि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपका आता है। सो लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया रफ। इसे देखो, अब ये एंगल 90 डिग्री, ये हमें पता है। उन्होंने क्या कहा है, राइट एंगल एट P, मतलब P ही हमारा राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री P की वैल्यू होनी चाहिए। जो Q एंड R है वो कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। दिस विल बी P आई एम कंसीडरिंग, यहां पे Q कंसीडर किया और यहां पे R कंसीडर किया। Q और R की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, वो आपके हिसाब से देख सकते हो, पर P की वैल्यू 90 डिग्री देना ये कंपलसरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वैल्यूज के लिए PQ की है 10 सेंटीमीटर और PR की है 24 सेंटीमीटर। PQ कहां पे, यहां पे, दिस इज 10 सेंटीमीटर। PR कहां पे, यहां पे, दिस इज 24 सेंटीमीटर। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द solution first. Now we are talking about triangle PQR, so I will be writing triangle PQR by Pythagoras theorem, Now which side is the hypotenuse side? Obviously the side opposite to 90 degree, so this will be A and this 2 will be remaining B and C side, right? हमेशा इस तरीके से कंसीडर करना है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, a square is equals to b square plus c square. What is the value of a, right? That is qr. So qr square equals to what is the value of b, right? That is pq. pq square c, that is pr. So pr square. Understood? तो हमेशा इस तरीके से abc लिख लेना ताकि आपको साइड में कंफ्यूजन ना हो। Now put the value pq we are having 10, so it is 10 square plus pr we are having 24, so 24 square equals to, now here the most important part, आपको ना स्क्वायर्स यहां पे याद रखना है और अगर नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो रफ में। फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर इजी है, so that is 100, ओके, प्लस 24 का स्क्वायर अगर आपको नहीं आता है तो उसका सिंपल तरीका क्या है, जो भी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करो। सो 4 उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 into 4 16, 1 carry, 4 2 is 8, 8 plus 1 9 plus 2 4 is 8, 2 2 is 4, addition 6, 9 plus 8 7, 1, that is 5, that is 576. Addition of it comes to be 676. So QR square कितना मिला मुझे 676। तो मुझे QR square की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे QR की वैल्यू फाइंड आउट करना है। So therefore this QR becomes equals to square root of 676 और 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। So therefore the value of QR is 26 and as the unit is given centimeter, so it is QR is equals to 26 centimeter. Understood? That's so simple. This is the final answer. Now let's see the next question. Now what is given in this next question, second question? ABC is a triangle, right angle at C. Again, जैसे हमें कोई फिगर दिया है तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लो। दिस इज राइट एंगल, ओके, कहां पे 90 डिग्री दिया है, राइट एंगल एट C, मतलब दिस विल बी C and this I can consider A and this is B. Okay, now what are the dimensions here? AB is 25 centimeter, AB means this is going to be 25 centimeter and AC दिया है 7 centimeter और मुझे BC फाइंड आउट करना है। BC is going to be 7 centimeter. So this I need to find out. So again same, we know that the side opposite to 90 degree is hypotenuse. So this will be A, this consider B, this consider C. It's a simple. Okay. Now which triangle we are talking about? We are talking about ABC. So in triangle ABC, solution should be always in this format only. Okay.
in triangle ABC by Pythagoras theorem. You need to mention the reason every time. Okay, by Pythagoras theorem I can say that a square is equals to b square plus c square. Now what is the value of a? That is ab. So it is ab square is equals to ac square plus bc square. Understood? Put the value. AB we are having 25, so put it 25. 25 square is equal to AC we are having 7. 7 square and plus this BC square as it is, as we have to find the value of BC square. Now, what is the square of 25? याद करना है आपको. It's very simple. 625. Okay? 25 का स्क्वायर हमेशा 625 होता है. ये याद करना. Equals to what is the square of 7? That's easy. 49 plus what is this will be BC square as it is. Now see, we can add this number directly because 625 is on LHS and 49 is on RHS. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा RHS में, और शिफ्टिंग हमें पता है प्लस goes to minus. So this is 625 plus 49 on this side goes to minus 49 equals to BC square. Understood? Now where it is? Now subtract it. If you subtract it properly, you get the answer as 576 equals to BC square. Simply I can also write that BC square is equals to 576. ये क्यों हुआ? कल भी मैंने बताया था सलमान खान लिखो या खान सलमान, this one is the same. So 576 is equals to BC square लिखो या BC square is equals to 576 लिखो, this one is the same. Again मुझे BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, so that will be equal to square root of 576. अब 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 24. अगर फिलहाल नहीं मतलब ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी था, तो यहां से भी रिलेट कर सकते हैं हम. So therefore the value of BC is equals to 24 square. ये कोइंसिडेंटली फर्स्ट क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, बट आपको याद करना पड़ेगा. ओके, सो द वैल्यू ऑफ BC is 24 centimeter. That's the simple answer for the second question. Understood? Now the next, this is a diagrammatic question. डायग्राम भी दिया है हमने टेक्स्ट बुक में, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. See, the diagram is given something like this. which is ladder है. Okay, ये 3D figure समझ लो आप. This is the ladder. And this is your wall. Okay. Okay. तो समझ लग रहा है wall. Okay. It's just एक थोड़ा सा कोशिश किया हमने फिगर करने की. इसका ये 3D फिगर हो गया. 2D फिगर क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा. सिंपली राइट एंगल ऑब्वियसली. ये राइट एंगल क्यों है? ये कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया? सी, हमें पता है कि कोई भी वॉल जो होती है ना, जो भी वॉल्स आप कंसीडर करो आपके हाउसेस के कहीं पे भी, वो हमेशा उसके बेस के साथ, फ्लोर के साथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं. वो कभी भी किसी एंगल के साथ नहीं होते, मींस टेढ़े नहीं होते, इंक्लाइन नहीं होते या डिक्लाइन नहीं होते. दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री परपेंडिकुलर. सो दैट्स व्हाई this angle become 90 degree and therefore this angle becomes 90 degree. Now the name is not given, so I will give the name commonly A, B, C. Okay, so here name was not given, so I consider this name. Now what they saying? A 15-meter long ladder. Now इसमें ladder कहाँ पे? This is the ladder. मतलब ये ladder इसके ये फिगर के अकॉर्डिंगली ये ladder हो गई. So that is 15 centimeter. So write this 15 meter. This is 15 meter ladder. Now what next they are saying? A 15-meter long ladder reach a window 12 meter high from the ground on placing it against the wall at a distance A. Okay, find the distance of the foot of the ladder from the wall. मतलब जो हमारे ladder है वो जो window को यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारी window यहाँ पे. Okay, ओके, दिस इज द विंडो. तो यहाँ पे वो टच कर रही है लैडर, और विंडो का जो डिस्टेंस है उसके फ्लोर से लेके टॉप तक का वो है 12 मीटर. मतलब हमें ये दिया गया है 12 मीटर, और उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस जो है फुट, ये वॉल के फुट से लेके लैडर के फुट तक उसे a से रिप्रेजेंट किया है, और हमें उस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. आया समझ में? इट्स सिंपल. बस ये डायग्राम उन्होंने दिया, इससे मैंने 2D फिगर निकाल लिया. अब राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया आपको, a की वैल्यू फाइंड आउट. ओके, नाउ मैंने नाम दिया है इन ट्रायंगल ABC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? वी नो दैट
a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे ना उन्होंने a यहाँ पे दिया है तो कोई कंपल्सन नहीं है, मैं इसे a कंसीडर कर लेता हूँ, ये b कंसीडर करता हूँ, ये c और ये a। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कंपल्सरी नहीं हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये अभी बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्यों चेंज किया मैंने, बिकॉज़ उन्होंने यहाँ पे bc की वैल्यू a दिया है इसीलिए चेंज किया। अब ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सिंपल है, ट्रायंगल के जैसे साइड चेंज हो जाएंगे हमारा वैसे फॉर्मूला चेंज हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है, बट इन जनरल के मैंने क्या याद रखा था, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। now what is the value b there, that is hypotenuse again because see 90 degree के अपोजिट में आ रहा है, that is ac square is equal to what is c, that is ab, so that is ab square plus what is a, that is bc, that is bc square. Put the value now, what is the ac, that is 15 square is equal to what is ab, that is 12 square plus bc is what 8, so a square I mentioned. Now what is the 15 square, yeah simple, 225 equals to what is 12 square, 144 plus this a square. Now again the same thing, 144 plus on this side goes to minus, so this is 225 minus 144 equals to a square. What is the subtraction of this? 15 minus 4, this is to be 9, then becomes 11. ये अगर यहाँ पे नहीं होता है आपको कंफ्यूज होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। Subtraction, sorry, 5 minus 4, this is 1, and this is, इसमें से आता है क्या नहीं आता है, so I will borrow, here it is 1, it's 12, 12 minus 4, it is 8, so it is 81. Understood? So this is 81 is equals to a square, that means a square is equals to 81, a is equals to square root of 81, and square root of 81 is nothing but 9, so therefore the distance from foot of the wall to the ladder foot is nothing but 9 meters. You can mention here the reason is equals to 9 meters. Understood? That's the simple. I hope you got the answer. Now next question number 4 की तरफ, let's see the fourth question. What they are saying, which of the following can be the sides of a right triangle? Right triangle means right angle triangle, जो कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया, थर्ड इजीली आप सॉल्व कर सकते हो अगर ये दो समझ में आ जाएंगे, और ये दो डेफिनेटली समझ में आने वाले। ना सी these are the sides given, और जब भी हमें प्रूव करना होता है किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को कि वो उस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा जो भी तीन साइड है हमेशा तीन साइड दिए जाएंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, लाइक हियर 2.5, 6.5 and 6.5 is the big number. So in this case 6.5 को ही हम हमेशा हाइपोटेनस साइड कंसीडर करेंगे। ओके, एंड जो बचे हुए दो साइड से लेग्स, ये दो छोटे छोटे नंबर्स उसके अलावा। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व। सो इट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं हम। जैसे एक आपको बस समझने के लिए एबीसी नाम दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, आई एम जस्ट टू एक्सप्लेन यू मोर क्लियरली, तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे ये एंगल 90 क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस हमें पता है ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस होना चाहिए, और ये जो बचे हुए दो साइड है। और मैंने क्या कहा, जो सबसे बिग नंबर है उस तीनों के अंदर वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, मतलब ये 6.5 और ये बचे हुए दिस इज 2.5 एंड दिस इज 6। ओके, नाउ इस तरीके से हमारे ट्रायंगल अब ये है या नहीं, ये जस्ट मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल में है क्या नहीं, वो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने के बाद पता चलेगा, अगर हमारा एलएचएस का आंसर और आरएचएस का आंसर सेम आता है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी लेट्स सी a square is equals to b square plus c square आता है या नहीं। a क्या है 6.5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b क्या है 2.5 होल स्क्वायर, होल मतलब पूरा, एंड bc क्या है, c क्या है, दैट इज 6 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6.5 आता है, वेल एंड गुड, याद है आपको, वेल एंड गुड, नहीं है तो कैलकुलेट करो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम समथिंग 42.25। Understood? It will come something 42.25 and 2.5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 6.25 और 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 36। Understood? That's it.
स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है? इट्स सिंपल, अगर नहीं भी है तो देखो एक बार बता देता हूं, 6.5 into 6.5 है। तो अगर आपको पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, फिलहाल 2 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ। ओके, लेट्स कंसीडर आई एम फॉरगेटिंग दिस डेसिमल्स फॉर 2 मिनट। मल्टीप्लाई नॉर्मल, ये तो मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, देखो 5 5 are 25, 5 to carry, 5 6 are 30, 30 plus 2 32 plus 6 5 are 30, 0 3 carry, 6 6 are 36, 36 plus 3 that is 39। यहाँ पे यहाँ पे and this is 5, this is 2, 9 plus 3 that is 2, this is 1 carry 4। now decimal कहाँ पे था हमारे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब after decimal how many total numbers are there? After this 1, after this 1, so that means 2 numbers are there after decimal, total 2 number। so हमेशा हमें पॉइंट कहां पे लेना है, from end और from यूनिट डिजिट से 2 नंबर के बाद, मतलब ये यूनिट डिजिट है 1 2, कहां पे आएगा यहां पे। सो आंसर विल बी 42.25, so कि मैंने वही लिखा था, राइट। सो नाउ लेट्स सी 42.25 इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, सो दिस इज 36, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, मतलब आई कैन टेक 2 नंबर, दिस इज 6.25, 0 plus 5 5, 0 plus 2 2, 6 plus 6 2, 1 carry 4, 42.5। that means on RHS side also I am getting same number। so if this comes equal, then I can say that therefore yes, it is a right triangle। right triangle means right angle triangle, as that understood? That's so simple it is। now the next one, और अगर समझ में नहीं आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो और फिर से प्रैक्टिस करो। now next क्या, say 2 centimeter 2 centimeter and 5 centimeter। now you can understand which will be the hypotenuse out of this, exactly that is 5 centimeter, and the remaining two legs will be this 2 centimeter and this 2 centimeter। so again for that simply draw a triangle। okay, जनरल नाम ले लो ABC, ये आपको मतलब इजी रहेगा याद रखने के लिए। so this will be okay, तो उसमें से मैंने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारे another 2 legs, big number is 5, so write it here 5 and the remaining 2 and 2। okay, now solution again, second bit, in triangle ABC, a square is equals to b square plus c square लिख लो पहले, that is 5 square is equals to 2 square plus 2 square। ये इजी है, डेसिमल वाले नंबर में 5 का स्क्वायर आता है 25 is equals to 2 का स्क्वायर आता है 4 plus 4, 25 is equals to 4 plus 4 is 8। तो ये इक्वल है क्या, नहीं, बिकॉज़ LHS आंसर और RHS आंसर अलग है। यहाँ पे है therefore no, it is not a right triangle। right means right angle triangle, right पर आगे तो समझ लेना right triangle के बारे में हम बात करें। that's a simple solution। आज समझ में इतना इजी हमारे पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप समझ रहे हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये ना हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को ध्यान देना है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है ताकि हर एक क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। ओके, नाउ सी मैं इसके लिए आपको 3D फिगर एज वेल एज 2D फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा सीन क्या है एग्जैक्टली। A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree। Find the original height of the tree। मतलब ये कुछ इस तरीके से है ना, मान लेते हैं कि ये हमारा बेस है और ट्री थोड़ा हाइट है, तो इस तरीके से बता रहा हूं, ये आपका ट्री है। ओके, नाउ हमें क्या है, ट्री ग्राउंड से 5 मीटर अब से वो ब्रेक हो गया है, मतलब मान लो कहीं से वो यहां से कहीं तो से ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद टूट गया, ब्रेक होने के बाद नीचे आ जाएगा, तो वो नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे आ गया यहां से, ठीक है, और इस तरीके से ग्राउंड को वो टच कर देगा। तो ये भी हमारे फिर से ट्री ही है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो ट्री यहां से ब्रेक हो गया और नीचे आ गया। ओके, तो ये भी ट्री और ये भी ट्री है, राइट। अब मैंने पूछा है कि यहां से लेके यहां तक का
डिस्टेंस क्या रहेगा, मतलब ट्री के ओरिजिनल फुट से जहां पे वो टच कर रहा है ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट, सॉरी ये भी फाइंड आउट करना है, हमें ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, मतलब ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करना है। ये 3D फिगर थोड़ा बहुत समझ में आया ना आपको, अगर नहीं आया तो कंफ्यूज मत होना, मैं 2D में फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो 2D कैसे रहेगा, ये ओरिजिनल ट्री था हमारा, ओके लेट्स कंसीडर ये A और B, ये हमारा ग्राउंड है, मान लो ट्री यहां से टूट गया तो ये यहां पे आके टच हो गया, इसे C नाम दे दिया मैंने, और लेट्स कंसीडर इसे D नाम दे देता हूं, ओके। तो ओरिजिनल ट्री क्या लगा AB, बट अभी जो ब्रेक डाउन ट्री हो गया तो वो कौन कौन सा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, these are the parts of the tree, बिकॉज़ देखो ये भी ट्री का पार्ट है, ये भी ट्री का पार्ट है, इसे अगर मैं फिर से खड़ा करूंगा तो ये कंप्लीटली ट्री हो जाएगा, मतलब ये सीधी अगर फिर से ऊपर जाएगा तो कंप्लीटली फिर से AB हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये इन्होंने क्या कह दिया था 1 मिनट, a tree is broken from a height of 5 मीटर, मतलब कहां से ब्रेक हुआ, यहां से, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, मतलब BB का डिस्टेंस है 5 मीटर, ओके। एंड फ्रॉम द ग्राउंड इट टचेस द टॉप it touches the ground at a distance of 12 मीटर, मतलब उसके बेस से ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहेगा बिकॉज़ ट्री भी स्ट्रेट होता है, बेस से जहां पे टॉप यहां पे वो जहां पे वो टच कर रहा है वो डिस्टेंस है 12 मीटर, मतलब ये दिया गया है मुझे 12 मीटर, अंडरस्टूड। तो मुझे क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है, तो अगर ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है मतलब मुझे एक बार CD फाइंड आउट करना पड़ेगा, और CD और AD ये हमारे एक ही है, ओके। CD और AD होना चाहिए बिकॉज़ ये पार्ट जो ब्रेक हुआ है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री मेरी क्या आएगी, दैट इज AD प्लस BD, एंड AD एंड CD इज द सेम, CD तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से हाउ वी विल फाइंड हियर इन फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं AD is equals to CD, that is part of tree, वो दोनों ट्री के पार्ट से हमारे, so that's why AD और part of में broken tree लिखना, ओके। broken tree के पार्ट्स हो गए वो, बिकॉज़ यहां से ब्रेक हो गया इसमें ये ट्री broken tree हो गया, और ये तो सेम ही रहेगा हमारा, ओके। नाउ इन ट्रायंगल DBC, ओके, ये 90 डिग्री है, मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये बचे हुए दो साइड को B और C कंसीडर करो, राइट, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, सो क्या लिखेंगे आप, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है दिस B C, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मुझे फाइंड आउट करना है, b क्या है, दैट इज 5 मीटर, सो दैट इज 5 स्क्वायर प्लस c क्या है, दैट इज 12 स्क्वायर, बिकॉज़ 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या आता है 144, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, राइट, दैट इज 169, therefore a is equal to square root of 169, a comes to be 13 मीटर, a की वैल्यू क्या मिली 13 मीटर। बढ़िया, हमारा फाइनल आंसर है क्या, नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है, और अगर मुझे ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है, इन शॉर्ट AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो AB क्या है, नथिंग बट AD प्लस DB, राइट। देखो AB क्या है, AD सॉरी प्लस DB, इन दोनों का एडिशन, और AD और CD सेम है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया, बिकॉज़ वो ब्रोकन ट्री का पार्ट है, सो इट विल बी CD प्लस DB, यहां पे देखो सिंस AD इज इक्वल्स टू CD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, जो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, CD मतलब A is 30 plus this is 5 which comes to be 18, so therefore 18 meter, so therefore अब एक में टाइम लिख लेना है, therefore the height, original height of the tree is 18 meter, and this is the simple solution for this. I hope you understand it. नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो, फिर से समझो, and I know that you will definitely understand it. Understood? Now the next question, the last 3 questions of your chapter, that is the triangles and its properties, and इसके बाद ये चैप्टर खत्म, और मुझे पता है डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, नहीं आए तो सारे वीडियोस फिर से देखो, देखते रहो जब तक आपको समझ में नहीं आता है, और प्रैक्टिस करो, बिकॉज़ प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन आने ही वाला है, ओके। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो, सर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। नाउ
In question number 6, what they're asking, angle Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. I think टेक्स्ट बुक में फिगर दिया है, तो मैं एक बार वो ड्रॉ कर लेता हूँ. कुछ आपको इस तरीके से फिगर दिया है वो. ओके, ये P, ये Q और ये R. ये दिया है, Q पहले आ रहा है मतलब 25 डिग्री, R बाद में आ रहा है इसलिए 65. तो ये दिया है आपको 25 डिग्री और ये दिया है आपको 65 डिग्री. नाउ सी, यहाँ पे बस पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होने वाला हमारा, उसके साथ साथ और एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है. कौन सी प्रॉपर्टी, एक बार सोचो तो. दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में के दो एंगल्स दिया है मुझे और थर्ड फाइंड आउट करना है. व्हिच प्रॉपर्टी इट विल बी? क्या बात है, वेरी गुड, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. So with the help of angle sum property, we will first find the value of Q, find the value of P, and once we get the value of P, so we can know that which type of triangle it is, and according to that, we will try to find out which one is true and which one is false. Okay, so let's solve this question. Now, we are talking about this triangle. So in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equals to exactly 180 degree. Reason, angle sum property. That's it. Very good. See, आपका रिवीजन भी हो रहा है इसमें. P एंगल हमें फाइंड करना है, तो P will be as it is. Q is 25 degree plus R is 65 degree is equals to 180 degree. 25 degree plus 65 degree is nothing but, बताओ क्या बात है, P plus 90 degree is equals to 180 degree. So that angle P, and we know that plus on that side goes to minus. So angle P will be equals to 180 degree minus 90 degree. Therefore, angle P is nothing but 90 degree. Exactly. So I can give the symbol here, right? तो P मुझे 90 डिग्री मिला है, मतलब ऑब्वियसली ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जहां पे राइट एंगल क्या है, P. If right angle is P, so that means hypotenuse will be exactly that is QR, and the remaining will be the two side, right? So इसके accordingly, so by Pythagoras theorem, a square is equals to b square plus c square. What is a here? That is QR square is equals to what is b here? That is PQ square. What is c there? That is PR square. मतलब यही ट्रू होना चाहिए. इसके अलावा अगर कोई साइड इधर हो जाती है, that means it will be not possible. Understood? Based on this, let's see which one will be true and which one is false. It is QR square is equals to QR should be on LHS और RHS किसी एक सेट पर यहाँ पे भी चलेगा. तो फर्स्ट क्या आ रहा है, RP स्क्वायर आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, QR स्क्वायर. तो सही में क्या नहीं, that means it is not true. ये आप प्रॉपरली लिखो, मैं यहाँ पे आंसर दूंगा. नेक्स्ट QR स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, ये इक्वल टू मैंने बाय मिस्टेक तो 3 प्लस तो नहीं आ सकते ना, राइट. सो सेकंड आपका आ गया QR स्क्वायर. हां, इट इज कमिंग. रिमेनिंग टू साइड PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR and RP is one and the same. So that means this is applicable. So this statement is true. Understood? बस इतना ही करना है, सॉल्व नहीं करना, हमें चेक करना है ट्रू या फॉल्स है. एंड लास्ट अगेन सॉरी, आई थिंक ये बार बार प्लस कैसे दे दिया अभी मैंने. दिस इज इक्वल टू ओनली. नाउ QR स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे PQ स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये के फिर हो जाता है, तो इट इज आल्सो नॉट ट्रू. एंड दैट्स द सिंपल आंसर फॉर दिस. सो फॉर दिस आपको ये एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था, और इसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट्स को बताना था कि वो ट्रू है या नॉट ट्रू है. आया समझ में? दैट्स सो सिंपल. नाउ आखिरी के दो क्वेश्चंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, इसको ध्यान दो थोड़ा सा. हां, इसके लिए ना आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो आपने आई थिंक 6th क्लास में पढ़ा भी है. थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, बट ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, देखो कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है रेक्टेंगल के बारे में. दैट इज रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं. ओके, देन अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके, बस इतना ही हमने पढ़ा था. नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पेरीमीटर.
पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड का एडिशन। इफ अ figure is having four side, addition of four side. If a figure is having five side, addition of five side. That means perimeter is nothing but the addition of all sides. तो रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल कैसा है हमने तो देख लिया, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस सिंपल फिगर, लेट्स नेम इट एज A, B, C and D. Okay, now based on this I will draw any one diagonal. तो मैं क्या करता हूँ, AC डायगोनल हमेशा याद रखना अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे ही डायगोनल मिलती है, अगर हम एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल नहीं, वो साइड बनती है, इसे भी सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ व्हाट दे सेइंग, द पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, हुज लेंथ, लेंथ मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल की लॉन्गेस्ट साइड। अगर आप BC और AB को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली BC इज लॉन्गर देन AB, तो BC हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, दिस इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड diagonal AC that is 41 centimeter. Okay, this is here. Now we know that diagonal rectangle के चारों एंगल जो होते हैं हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और मुझे ये बाकी के रेक्टेंगल से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस ट्रायंगल ABC को फोकस करूंगा। क्यों? बिकॉज़ सी मुझे BC मिला है 40 सेंटीमीटर जो दिया है, तो ऑब्वियसली AD भी 40 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ वो अपोजिट साइड है, और जैसे हमने पढ़ा था अभी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा सेम होते हैं, तो एक बार अगर मुझे AB मिल जाता है तो ऑब्वियसली CD भी वही रहेगा, और एक बार AB, BC, CD और AD मिल गया मुझे, उन सब का एडिशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, दैट इज पेरीमीटर। ओके, नाउ लेट्स फाइंड इट, सॉल्यूशन 7। ओके, सो आई एम कंसीडरिंग इन ट्रायंगल ABC, सब कुछ ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, ABC। नाउ सी दिस इज 90 डिग्री, मतलब ऑब्वियसली ये AC हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा, और ये बचे हुए दो साइड मींस AB एंड BC विल बी द टू लेग्स। सो इन ट्रायंगल ABC A square is equals to B square plus C square, रीजन आप ब्रैकेट में ऐसे भी दे सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, व्हाट इज A, दैट इज AC, so that is AC square is equals to B क्या है AB, that is AB square, C क्या है that is BC, so BC square। What is the value of AC, that is 41, so 41 square is equals to BC जबकि B square है plus C minus 40 square। Understood? Again अभी 41 का स्क्वायर नहीं है, कोई इतने नहीं, तुरंत ना क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन करना काफी इजी है। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 1 4 plus 4 8 6 1, कितना है 168। So that is 1681 is equals to B square plus 40 का स्क्वायर के लिए टेंशन मत लेना, बड़ा भले नंबर है, इसमें क्या कैसे सॉल्व करना देखो। You know the 4 square, what is that? 16, right? क्या बात है? स्क्वायर एक्स 0 को कितने बार लिखना है? 2 बार। ये हो गया हमारा 40 का स्क्वायर। तो सिंपल, 40 का मत निकालो, 4 का निकालो, 2 जीरो ऐड करो। स्क्वायर है इसीलिए 2 जीरो ऐड किया, क्यूब होते तो 6 जीरो होते, राइट? नाउ plus on this side goes to minus, so this is 1681 minus 1600 is equals to B square, this comes to be 81 is equals to B square, मतलब B square is equals to 81, so B is nothing but 9 centimeter, so B मतलब AB, so that is AB is equals to 9 centimeter, ये भी मुझे मिला 9 सेंटीमीटर, अगर AB 9 सेंटीमीटर है तो obviously CD भी क्या हो गया 9 सेंटीमीटर होगी, so here I can say that therefore perimeter equals to AB plus BC plus CD plus AD, that is addition of all sides. What is AB? 9 plus what is BC? That is 40 plus what is CD? That is again 9 plus what is AD? That is again 40. तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इजीली हम 40 plus 40 80, इन दोनों का कर लो पहले, 9 plus 9 80, इन दोनों का एडिशन 98, so 98 centimeter is nothing but your perimeter of this rectangle ABCD। रेक्टेंगल को नाम नहीं दिया है बट मैंने दे दिया उसे, आप अपने हिसाब से और कुछ दे सकते हैं। so that is a simple solution, I hope you understand it। नहीं समझ में आया
कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। नाउ द लास्ट वन, ओके, ये क्या है, रोम्बस। नाउ ये रोम्बस के लिए आपको फिर से रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रोम्बस के अगर प्रॉपर्टीज पता है तो डेफिनेटली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और रोम्बस की प्रॉपर्टी भी कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है, वो भी काफी इजी है। देखो रोम्बस और स्क्वायर ये काफी सिमिलर होते हैं, बस उनके अंदर एक डिफरेंस, दो डिफरेंस होते हैं, एक नहीं दो होते हैं। स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और रोम्बस के चारों एंगल डिफरेंट एंगल्स डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते। स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल बस बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, बट इक्वल नहीं होती, एक बड़ी होती है तो एक छोटी होती है। गेटिंग? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस प्रॉपर्टीज। और इसमें से हमें क्या करना है, रोम्बस को यूज करना है। सो लेट्स ड्रॉ अ रोम्बस हियर। तो मैं इस तरीके से रोम्बस ड्रॉ करता हूं, तो से टाइट करना है, तो से ओके, आई होप थोड़ा सा लग रहा है। से ए बी सी डी रोम्बस, जिसके चारों साइड इक्वल हो जाते हैं, और डायगोनल्स मतलब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करो, ये डायगोनल हो गए और ये डायगोनल। डायगोनल्स हमेशा परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये चार एंगल्स 90 डिग्री हो गए। और इसे अगर मैं नाम O दे देता हूं तो ये BO और DO सेम रहेगा, और ये AO और ये CO सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? उन्होंने क्या कहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब वो बस डायगोनल्स के बारे में डाटा दिया है, एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर की है और एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर की। जो लॉन्गर रहेंगी वो ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर की रहेगी, और जो शॉर्टर है वो हमारे 16 सेंटीमीटर की रहेगी। अगर इसके अंदर क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका? ऑब्वियसली रोम्बस का। तो मुझे रोम्बस की अगर कोई एक साइड भी मिल जाती है ना, तो ऑब्वियसली चारों साइड सेम ही रहेंगे, बिकॉज़ रोम्बस के चारों साइड सेम रहते हैं। अभी हमने जस्ट देखा है। नाउ सी इफ यू ऑब्जर्व इट हियर, लेट अस कंसीडर BD हमारे शॉर्टर डायगोनल है। ओके, यहां पे लिख लेता हूं मैं AC longer diagonal. ओके, सो देयरफॉर AC कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर बड़ा नंबर है, एंड BD शॉर्टर डायगोनल, सो देयरफॉर BD कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमने क्या देखा था कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब अगर 10 है तो 5 5, 16 है तो 8 एंड 8, 30 है तो 15 एंड 15। सो अगर AC हमारा 30 सेंटीमीटर है तो AC डायगोनल हमारा दो कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है AO और एक है CO। सो कैन आई से दैट AO is equals to CO is equals to दोनों आ जाएंगे 15 सेंटीमीटर, बिकॉज़ AC 13 सेंटीमीटर का था। सिमिलरली BO is equals to DO, ये आ जाएगा दोनों 8 सेंटीमीटर का, एज BD हमारा डायगोनल है। दोनों के लिए एक ही रीजन, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, नाउ सी इफ यू ऑब्जर्व देयर आर फोर ट्रायंगल्स, 1 2 3 4। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, बट प्रॉपर्टी तो वही आता है, हमें मैथ कुछ भी नया नहीं। इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर करो, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक ट्रायंगल 90 डिग्री का ही है, राइट? तो कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, AOB लो या BOC लो या COD लो या AOD लो। ओके, कोई भी एक ट्रायंगल लो, बिकॉज़ कोई भी एक साइड में मैं फाइंड आउट करता हूं ना, तो बाकी सारे साइड सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा प्रॉपर्टी की रोम्बस के चारों साइड सेम होते हैं। तो अगर मुझे AB की वैल्यू भी मिल जाती है तो ऑब्वियसली BC CD और AD का भी वैल्यू सेम ही रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, AOB ये ट्रायंगल अप्लाई करता हूं। अभी इसको सेपरेटली यहां पे आपको ड्रॉ करके बताता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा, क्या हमारा बेस रहेगा और लेग्स रहेंगे। जस्ट थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने देखा AO कितना है 15, मतलब ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। BO कितना है, दैट इज 8, मतलब ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री है यहां पे, तो ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूस हो गया 90 डिग्री का अपोजिट,
इसे B और इसे C मतलब दो लेग्स कंसीडर किया, तो which triangle I am talking about? AOB. So right here in triangle AOB, A square is equals to B square plus C square. Reason by Pythagoras theorem. यहाँ पे मैंने शॉर्टकट किया, आप पूरा लिखना. ओके, A की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है. So that is A square is equals to B क्या है 15 स्क्वायर, C क्या है 8 स्क्वायर. 15 का स्क्वायर आता है 225, याद नहीं हो याद कर लो. 8 का स्क्वायर आता है 64. ठीक है, अब ये छोटे छोटे से नंबर इस तरह कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, आप कर सकते हो इसे. Now 225 plus 64, 5 plus 4 9, 2 plus 6 8 and 2 as it is. A square is equals to 20 289 मतलब A is equals to root 289. और मैंने कहा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखो. 289 हमारा 17 का स्क्वायर रूट है, तो देयरफॉर A की वैल्यू बनेगी 7 सेंटीमीटर. A की वैल्यू 7 है मतलब AB की वैल्यू क्या होगी 17 सेंटीमीटर. ओके, और अगर AB की वैल्यू 17 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर आई कैन से दैट AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD, that is nothing but 17 centimeter. Okay, and यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ. Therefore perimeter is equals to क्या आ जाएगा 17 plus 17 plus 17 plus 17. इन सब का एडिशन 34 plus 34 करो, देखो क्योंकि वो ज्यादा इजी हो जाएगा. 17 plus 17 34, 34 plus 34 और दोनों का एडिशन आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 68 सेंटीमीटर. एंड दैट्स द पेरीमीटर ऑफ योर rhombus ABCD, and that's the simple solution. Okay, so I hope you understand this question and the complete chapter triangles and its property. एक बार कोई चीज भी समझ में नहीं आई तो पूरे वीडियोस एक बार देख लो, practice करो, and I know that everyone is going to score good marks in your exam. So at the last, do share with your friends, like it, कमेंट करो आपके अच्छे अच्छे कि सर मुझे समझ में आया नहीं आया, जो भी है आपको समझ में आया कमेंट करके बताओ. कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो बताओ, और लाइक करो. ओके, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ अपने शेयर करो ताकि हम भी आगे बढ़े और हमारे फ्रेंड्स भी आगे बढ़े. So thank you for watching the videos. Do like, share and comment.